Hello everyone, myself Nupur Kanchan, and today in this video we are going to deal with our first chapter, that is digestion and absorption of human physiology. तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन, हम कोई भी खाना इंटेक करते हैंगे, कोई भी फूड जब हम इंटेक करते हैंगे तो वो डायरेक्टली उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैंगे, जो इसमें से विटामिन मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए पड़ते, वो उस कॉम्प्लेक्स फूड से हमारी जो बॉडी होती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड दैट वी ईट कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर फॉर्म एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में जो कन्वर्ट हो जाता है। तो डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी और फर्दर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती जाए, जो कि हमारी बॉडी जिसको उससे उस वाले फूड से एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट होता है कि हम कहाँ से खाना खाते हैं, अपने मुंह से। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है बकल कैविटी। तो फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी। सेकेंड पार्ट, बक्कल कैविटी के बाद जो फूड पाइप होती है कि जहां से हमारा खाना फर्दर अपने स्टमक में जाता है, तो सेकेंड पार्ट इज ऊसोफेगस। थर्ड, stomach. Fourth, from stomach it comes into a small intestine, then further large intestine. So our human digestive system parts are buccal cavity, oesophagus, stomach, small intestine and large intestine. Large intestine. These are the parts of human digestive system. Further अब digestive system से कुछ हमारी glands भी associated होती हैं। तो there are three types of glands होते हैं। First, salivary glands. Second, our liver, and third, the pancreas. Sometimes we can call gallbladder also as a gland. तो हमारी तीन associated जो glands होती हैं इसके साथ digestive system के साथ associated glands. First one is salivary gland. Salivary gland, second liver, and third pancreas. Okay, so these are the parts of our digestive system and these are the glands that are associated with our digestive system. Now we will learn one by one them. Firstly, we will see that our small intestine has further three parts. What are they? Small intestine, first one part is duodenum, jejunum and ileum. And our large intestine also has three parts. That is, first one cecum, second colon, then rectum. These are the brief parts of our digestive system. Now what are they? Buccal cavity, then oesophagus, then stomach, then small intestine and large intestine. There are three parts of small intestine, that is duodenum, jejunum, ileum, and three parts of large intestine, that is cecum, colon and rectum. Now we will firstly deal with our alimentary canal. So in alimentary canal, the anterior part is called mouth and the posterior part is called anus. So in this we will see that alimentary canal, first part is mouth. In mouth there are teeth and tongue. So firstly we will see about teeth. हम देखेंगे अब teeth के बारे में। तो there are three types of dentation. There are three types of dentation in human. That is thecodont, diphyodont and heterodont. Thecodont, diphyodont and heterodont. Firstly we will see what is thecodont. तो thecodont क्या होता है? In thecodont, teeth are embedded in socket of jaw bone. हम जानते हैं जो हमारे टीथ होते हैं वो अपने जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड धसे हुए होते हैं। तो इसी वाले डेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ अवर जॉ बोन, तो थीकोडोंट। नाउ वी विल सी डेंटेशन डाइफायोडोंट।
तो डाइफाइडोडोंट क्या होता है? जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मीन्स टू. It means teeth appears 2 times in human body. That is, we also know that first time teeth appears as milk teeth. जो हमारे milk teeth होते हैं वो टूट जाते हैं at the age of 4-5 years के एज पे जो दांत टूट जाते हैं. तो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं. They are not permanent. एंड उसके बाद जो हमारे टीथ आते हैं वो कैसे होते हैं? अपने परमानेंट टीथ होते हैं. तो ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें 2 टाइम्स टीथ आते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना डाइफाइडोडोंट. नाउ व्हाट इज हेटेरोडोंट? नाम से ही समझ में आ रहा है हेट्रो. हेट्रो वर्ड हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं जब डिफरेंट टाइप्स के हो. होमो सेम के लिए, हेट्रो डिफरेंट टाइप्स के लिए. जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हेंस आवर टीथ हैज हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन. तो हम देखेंगे 4 टाइप्स, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. सो अब इसमें हमारा आता है डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? जो हम एक अपना जो फर्स्ट हाफ पार्ट से देखेंगे, ऊपर जॉ अपर जॉ के फर्स्ट हाफ पार्ट में देखेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स. तो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन डेंटेशन. ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3. इट मींस जो अपर जॉ, जो हम फर्स्ट हाफ की जो अपर जॉ का फर्स्ट हाफ देखेंगे तो उसमें 2 टाइप्स क्या होते हैं? इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर. तो ये हमारा होता है डेंटल फॉर्मूला. अब हम देखेंगे जो हमारा माउथ है. अब टीथ के बारे में तो पढ़ लिया. टीथ में एक जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है दैट इज इनेमल. जो हमारे टीथ के ऊपर जो हार्डर आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ये इजीली डिग्रेड या इजीली टूटता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? इसको इनेमल बोलते हैं. टीथ के ऊपर इनेमल होता है. नाउ वी विल सी आवर टंग. टंग क्या होता है? टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी पीछे बैक साइड से अटैच्ड होता है. जो टंग जहाँ से अटैच्ड होता है अपनी माउथ से की सरफेस से उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम. किससे अटैच होता है? फ्रेनुलम से. एंड टंग के ऊपर हम कहते हैं टेस्ट वर्ड्स. हमें कहाँ से अपना टेस्ट आता है कि ये कैसे टेस्ट का है? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट वर्ड्स व्हिच इज कॉल्ड एज पेपिली. जो टंग होता है उसके ऊपर क्या होती है? पेपिली प्रेजेंट होती है. वहाँ पर टेस्ट वर्ड्स होते हैं अपने. ठीक है, तो ये अपना हुआ टंग. टंग जो अपनी बैक साइड से अटैच होती है एक यू शेप्ड बोन से, उसको हम क्या बोलते हैं? हायोइड बोन. जो टंग होती है कि वो अपनी बैक साइड से अटैच होती है यू शेप्ड बोन से, उस बोन को हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन. तो ये हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने माउथ के बारे में पढ़ा, अपने टीथ के बारे में पढ़ा. टीथ के बारे में देखा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, उनके डेंटेशन क्या क्या होते हैं. देन टंग क्या होता है? टंग फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है, उसमें पेपिली टेस्ट वर्ड्स आते हैं. नाउ वी विल फर्दर कंटिन्यू विद आवर सेकंड पार्ट. तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो माउथ टीथ, वहाँ से जो हमारी ओरल कैविटी है वो फर्दर आती है अपनी कौन से पार्ट में? फेरिंग्स में. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड. फॉर फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज होते हैं वो क्या होता है? फेरिंग्स. ये बहुत बार क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है कि व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद जो हो जाएगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. जैसे कि डाइजेशन चैप्टर है तो उसमें हम पढ़ते हैं अपना जो फूड पाइप होती है ईसोफेगस के बारे में. और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं अपना कौन सा? विंड पाइप के बारे में, जैसे ट्रैकिया होता है. तो इसमें जो फेरिंग्स होता है वो 2 पार्ट में जाता है, जो फूड पाइप एंड विंड पाइप. ईसोफेगस एंड ट्रैकिया के बारे में. तो यहाँ पे हम देखेंगे ईसोफेगस में. तो जब क्या होता है कि जब हम खाना इंटेक करते हैं, जब हम फूड इंटेक करते हैं, जब जा रहा होता है तो अपन को पता है जो विंड पाइप है वो अपना जो डोर होता है उसमें जो ऊपर जो होता है क्या? एपिग्लॉटिस. वो उसकी जो विंड पाइप होती है ग्लॉटिस उसको क्लोज कर देता है ताकि जो हमारा खाना है वो हमारे क्या होता है? विंड पाइप में ना चला जाए. नहीं तो क्या होता है ना कि ठसका वगैरह लग जाता है इस तरीके से अपना. तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो ऊपर से कवर होता है जो अपनी क्या विंड पाइप को कवर कर लेता है जब हम लोग क्या फूड को इंटेक कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस है ये क्या है? कवर की तरह वर्क करता है. ऐसे ही जो ऊसोफेगस है इसका कवर क्या बोलते हैं? हम लोग गुलेट बोलते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? जो ऊसोफेगस होता है वो फर्दर एक्सटेंड होकर अपने क्या जे शेप्ड स्टमक में जाता है. स्टमक में जो फर्स्ट पार्ट होता है कौन कौन से होते हैं स्टमक में? कार्डियक, बॉडी, फंडिक, पाइलोरिक. जो ऊसोफेगस जो स्टमक में जब जाता है तो वहां से एक स्फिंक्टर होता है. कौन सा? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर जो कि क्या कंट्रोल करता है कि फूड को एक बार अगर स्टमक में चला गया तो वो वापस अपने जो अपर फ्लो होता है ना बैकवर्ड फ्लो उसको नहीं आने देता है. तो अपने स्टमक के फिर 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, बॉडी, फंडिक, पाइलोरिक. जो हमारा 4th पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरिक. ये जो फर्दर होता है यहाँ पे भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. जो पाइलोरिक से जो अपना स्टमक से जो डाइजेस्टिव फूड होता है जो अपना चला जाता है फिर कहाँ पे फर्दर अपना जाता है? ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो वहाँ पे स्फिंक्टर होता है कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि कंट्रोल करता है अपना पार्ट ड्यूडेनम में जाने वाला. तो यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से कहाँ जाता है? ड्यूडेनम.
ड्यूटनम जो होता है कहाँ होता है, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ के साइड से अपनी पैंक्रियाज निकली हुई होती है, तो ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो ड्यूटनम। देन अपने कॉइल पार्ट अपना जेजनम, और हाईली कॉइल्ड पार्ट क्या होगा अपना इलियम। हाईली कॉइल्ड क्यों होता है ये पार्ट, ताकि इसमें सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फिर उसके बाद जो इलियम होता है वो इलियोसिकल वॉल्व से, इलियम जो होता है फर्दर इलियोसिकल वॉल्व से कहाँ पे अपना सीकम से जुड़ा हुआ होता है, ये जो पार्ट है अपना लार्ज इंटेस्टाइन का। अब सीकम क्या होता है, सीकम इज अ ब्लाइंड सेक ऑर्गन, एक ब्लाइंड सेक ऑर्गन होता है जहाँ पे कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड करते रहते हैं। जैसे कि फर्दर पहले की जो ह्यूमंस होते थे वो घास वगैरह इस टाइप पे खाते थे, तो उसमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए यहाँ पे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फिर जो सीकम से अपना फर्दर एक जो वेस्टिजियल पार्ट होता है क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जुड़ा होता है, ये वेस्टिजियल फॉर्म होता है। फिर सीकम के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट कोलोन रेक्टम। जो कोलोन होता है वो भी 4 टाइप्स का होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मोइड, ये जो 4 टाइप्स के अपने कोलोन होते हैं। उसके बाद जो अपना पार्ट होता है रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है जो अपना वेस्ट मटेरियल जो फेसेस होते हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं। देन फर्दर जब टाइम आने पर उसको हम लोग थ्रू एनस बाहर अपने एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये जो हमारा था डिस्क्रिप्शन अपना क्या इसका था, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें हम बाकी इसमें जो 4 लेयर्स कौन कौन सी होती है, सेरोसा मस्कुलरिस, इन सब के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।